And now moving on, now on West Bengal, CM Mamata Banerjee's statement on Durgapur gang rape case. Union Minister Sukanta Majumdar says Mamata Banerjee is issuing a falsified statement because the incident did not happen inside the campus. This is a total failure of administration. In 2021, when they came, the Park Street incident happened, and you can collect their statement from the library. All these people of the Kamduni incident got bailed in the Kolkata High Court. That is a lack of efficiency in investigation, which is encouraging these rapists. Let's listen in. See, this is again, Mamata Banerjee is issuing a falsified statement because the incident did not happen inside the campus. The student belongs to private medical college, but incident happened outside the college. So Mamata Banerjee again trying to mislead the people of West Bengal. This is the total failure of administration. Why these kind of incidents are happening? Because the use of insensitive statement by the TMC leadership from the beginning of the rape incident when they came into the power. In 2011 when they came, the Park Street incident happened. And what was the statement? You can collect it from the library. And most importantly, the most horrifying incident, that Kamduni rape case. When the incident happened, the lower court given the verdict of life imprisonment and hanging also in some cases. But all these people get bailed. They got bailed in the higher court, that is the Kolkata High Court. That is the lack of efficiency in investigation. That is encouraging this rape. I have my colleague Renik Datta joining me now. Renik, this is a scathing statement by Sukanta Majumdar on Mamata Banerjee. What more can you tell us? हाँ एकदम देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर ही बीजेपी अभी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है बोल सकते हैं, और इसी को सामने रखते हुए सुकंत मुजुमदार की तरफ से ये बयान दिया गया है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट कॉलेज कैंपस के बाहर हुआ था, और कॉलेज कैंपस के बाहर का जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ था वो वेस्ट बंगाल पुलिस के अंडर में आता है। तो पुलिस की तरफ से उस जगह पर किसी भी मोबाइल पेट्रोलिंग का बंदोबस्त नहीं किया गया था, और के साथ साथ ही वो पूरा एरिया में पर्याप्त जो लाइट का बंदोबस्त वो भी नहीं किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी, सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। तो इसी को सामने रखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फेल्योर वो ही बीजेपी की तरफ से अभी उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये मामले को सामने रखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उस बयान में जिस तरीके से लड़कियों को रात में निकलने पर पाबंदी लगाने का बात किया गया है, तो ठीक उसी को हथियार बनाने का कोशिश वो अभी बीजेपी की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। रेनिक, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मैं लौट के आऊंगी आपके पास और जानकारी के लिए। And now there's more breaking news coming in on the Durgapur alleged gang rape case. Chairperson of the Odisha State Commission for Women, Sovana Mohanty, says the victim is currently undergoing treatment. I urge West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to ensure that the victim receives the best possible medical care. Those responsible for such heinous acts must be tried in fast-track courts to ensure swift justice for the victim. Let's listen in. का ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनका बेटर ट्रीटमेंट होना चाहिए। चल रही है ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनका बेटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जरूर है। वो वेस्ट बंगाल के जो सीएम एक महिला है, ये महिला के लिए, ये विक्टिम के लिए, ये उनके साथ जो कुछ हुआ उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये उनका बंदोबस्त करिए। सब कुछ बंदोबस्त करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। प्रशासन के बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनका एसओपी साथ के बातचीत हुआ, वो 5 लोग अरेस्ट हुआ है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ उनको कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कर। रेनिक इज जॉइनिंग मी अगेन नाउ। रेनिक, आप मुझे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि जो विक्टिम है उनकी कैसी तबीयत है, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर में थी हॉस्पिटल में, अब उनकी कैसी तबीयत है?
देखिए हॉस्पिटल के तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो विक्टिम है उनका तबीयत अभी इम्प्रूव हुआ है, उनको आईसीयू से जनरल बेड में शिफ्ट किया गया है, वो डेवलपमेंट स्टेज में है, वो जल्द से जल्द ही इम्प्रूव कर रहा है और उनका हेल्थ कंडीशन और भी बेटर हो रहा है, ऐसा हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परिवार की तरफ से, विक्टिम का जो परिवार, उनके तरफ से लगातार डिमांड किया जा रहा है कि वो लोग इधर से ट्रीटमेंट कराकर भुवनेश्वर एम्स में वो लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं और भुवनेश्वर एम्स में ले जाकर बेटर ट्रीटमेंट के लिए उधर लेने जाने का जो प्रोसेस परिवार की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच में कल ओडिशा का जो वुमेन कमीशन का टीम, वुमेन कमीशन के चेयरमैन के साथ वो टीम जो है वो आ पहुंचा था उस अस्पताल में जिस जगह पर विक्टिम मौजूद है, और विक्टिम के साथ मुलाकात भी की है। विक्टिम के साथ मुलाकात करने के बाद विक्टिम का बयान भी रिकॉर्ड किया गया और उसके साथ साथ ही परिवार के साथ भी चेयरपर्सन की तरफ से मुलाकात किया गया। उसके बाद ही चेयरपर्सन की तरफ दावा किया गया कि विक्टिम का तबीयत अभी अच्छा है, डेवलप कर रहे हैं और विक्टिम का परिवार चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट भुवनेश्वर में ले जाकर किया जाए, तो उसका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ जो वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन है उनकी तरफ से अपील किया गया है कि ये पूरा मामले पर जो जांच है वो जांच का प्रक्रिया उसको जल्द से जल्द किया जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए और जो 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उनको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाए, क्योंकि ये पूरा घटना जो है ये एक दृष्टांत हो सकता है, ये एक सबक हो सकता है। पूरा इस तरीके का जो घटना, ये घटना अगले टाइम पर ना हो, इसके बारे में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसा ही सुपर्णा महंती की तरफ से कहा गया है। जी रैनिक, जैसे आप बता रहे थे बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो विक्टिम है वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें। आप हमारे साथ बने रहिए। नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़, नाउ अ सिविल सोसाइटी ग्रुप Abhaya Manch has announced